Greetings, dear young friends, and I wish you the very best of luck in your preparations and success in future. Friends, I'm Group Captain A.K. Srivastava, and I have been publishing a few videos on the very authentic knowledge about the philosophy, about the general principles which a candidate must know before appearing before the Service Selection Board's interview. Friends, so far, I have posted about 17 such videos. Quite a few of them, they are the part of my online lessons. But whatever I have posted there, they generally deal with either the psychological technique or they deal with the general principles of selection methodology, how it has evolved. Today, we are going to talk something on a different technique, not on psychology, but on interview. But before I come to the topic of interview today, I request you, please share the videos, show your likes, and definitely refer it to somebody who is actually needing these things, perhaps equally, or maybe more than you. And I would like to say that these videos of mine certainly are much more beneficial to the repeaters in comparison to the freshers. Very honestly, very candidly, I'm accepting. I'm sure you must be knowing some of your friends who have been trying to have success or to taste success in SSBs for a long time. Kindly refer my channel, show likes, and share these videos. Friends, with this background, let us start. What is the issue of the day? I've been telling you that psychology is the mother of all techniques. Wherever human behavior is, psychology has to be there. Now comes the techniques of the service selection boards. One of the very important, very significant techniques is the interview. I'm not going to talk about the principles of interview and such like things, but I'm going to talk about certain issues which the candidates generally encounter. Sometimes they find themselves at loss, what to say, what not to say. तो ऐसे ही दो चार इश्यूज हैं, इनके बारे में आज हम लोग बात करते हैं. और इंसिडेंटली बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं और मेरे अपने फ्रेंड्स के काफ़ी बच्चों ने भी इस तरीके की चीज़ें शेयर की हैं और वो चाहते हैं कि इनका कोई एक एक्सपर्ट के थ्रू एक उनको जवाब मिले. वो चाहते हैं कि उनको कुछ क्लैरिटी मिले. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज इश्यूज, अ फ्यू ऑफ दीज इश्यूज. आई एम नॉट सेइंग दैट दीज आर all the issues faced by the candidates, but these are a few issues which generally candidates face. So पहला issue ये है friends, बहुत सारे, at least I have seen the people from the northern India, northern parts of India, they face the issue of language. Many of them, they feel that it is not possible, it is not easy for them to converse or translate their ideas into English and then make an impression as well. They sometimes struggle. Friends, let me make one thing very clear. चलो आगे की बात मैं हिंदी में कहता हूं. अपना देश बहुत विविधता और बहुलता का देश है. यहाँ पे अनेक भाषाएं हैं, सैकड़ों भाषाएं. कुछ को संविधान में जगह मिल गई है, कुछ को नहीं भी मिली है, लेकिन हमारा देश पुराना है, हमारी भाषाएं पुरानी हैं और हर भाषा में बहुत ही सांस्कृतिक संपन्नता है, उनके साहित्य हैं. हर व्यक्ति को अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा बेहद बेहद प्रिय है और होनी भी चाहिए.
अब एक व्यावहारिक कठिनाई आती है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये आती है कि सिलेक्शन बोर्ड्स किस भाषा को अडॉप्ट करें ताकि कैंडिडेट्स की टेस्टिंग हो सके। अब मान लीजिए कि एक भाषा मैं उदाहरण के लिए लेता हूं कि असमिया भाषा है। इसका भी अपना एक सांस्कृतिक इसकी सांस्कृतिक समृद्धि है, इसका साहित्य है। अगर आप दक्षिण भारत की भाषाओं में बात करें के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि करीब करीब सभी भाषाएं बहुत ही समृद्ध, हाँ, साहित्य से परिपूर्ण, परंपराओं से परिपूर्ण। तो व्यावहारिक पक्ष ये है कि अलग अलग भाषाओं में टेस्टिंग नहीं हो सकती है। ये सारे टेस्ट्स जो हमने सिलेक्शन बोर्ड्स की स्कीम में रखे हैं, ये सच्चाई की बात है कि ये अपने देश में नहीं, ये विदेशों में डेवलप हुए हैं। और जिस भाषा के माध्यम से हमारे पास आए हैं वो अंग्रेजी है। भारतवर्ष में काफी समय तक अंग्रेजों की हुकूमत रही है और ये सच्चाई है कि काफी दिनों तक और बहुत हद तक आज भी ये सच्चाई कायम है कि साइंस या इस तरीके से तकनीकी विषय, टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट्स, उनकी पढ़ाई अभी भी अंग्रेजी में ही होती है। ये बात अलग है कि अंग्रेजी को आप अपने दैनिक, बहुत कम ऐसे परिवार हैं जो अंग्रेजी को अपने डे टू डे लाइफ में, अपने दैनिक व्यवहार में अंग्रेजी नहीं ले आते हैं। लेकिन दैनिक व्यवहार की भाषा एक तरफ होती है और औपचारिक भाषा दूसरी होती है, फॉर्मल लैंग्वेज। लोग कितना भी कुछ कह लें, असल में भाषा के ऊपर कुछ बोलना ऐसे ऐसे जैसे लगता है ना कि बर्र के छत्ते में हाथ डालने वाली बात हो जाती है। ओके, क्योंकि इसमें इतनी राजनीति हो चुकी है और इतने अधिक भावनाओं को लोग उनको जगाते हैं, उत्तेजित करते हैं कि जो चीज एक संवेदनशील विषय होना चाहिए वो उत्तेजना का विषय बन जाती है। इसलिए मैं भाषा के बारे में कहना नहीं चाहूंगा क्या होनी चाहिए क्या नहीं, लेकिन इतना अवश्य है कि इस सच्चाई से आप जितनी जल्दी अवगत हो जाएं और इसको स्वीकार कर लें कि ऑफिसर्स कैडर, अधिकारियों के बीच में औपचारिक भाषा अंग्रेजी ही है और सिलेक्शन बोर्ड्स के साथ मजबूरी ये है कि वे एक पर्टिकुलर क्षेत्रीय भाषा में टेस्टिंग नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स भी चाहिए, उसके लिए आपको लिटरेचर भी चाहिए। तो बिना किसी आगे के द्वंद्व के आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको अंग्रेजी में परेशानी होती है, अपनी बात कहने में परेशानी होती है, तो प्लीज भाषा को डेवलप कीजिए। विशेष करके हिंदी भाषी क्षेत्रों के बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनके साथ मेरी बातचीत होती है, वो कहते हैं कि सर मैं अंग्रेजी समझ लेता हूं। दोस्तों, बात समझने की नहीं है, बात समझाने की भी तो है। आपको अपने अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करना पड़ेगा। आपको आदेश, वॉर प्लान्स, इंस्ट्रक्शंस आपको अपने अधिकारियों से मिलेंगे। आप वहां तक तो ठीक है, आप समझिए, लेकिन उसके बाद उसी चीज को आपको अपने सबॉर्डिनेट्स को समझाना भी है। तो समझना एक चीज नहीं होती, समझाना भी एक चीज होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि विषय ऐसा, चाहे तकनीकी विषय हो, चाहे वॉर प्लान्स हो, कभी कभी आपको अपने फेलो ऑफिसर्स के साथ भी डिस्कस करना पड़ता है, अपने साथी अधिकारियों के साथ भी उस चीज के बारे में विमर्श करना पड़ता है। तो कृपया, अगर भाषा के बारे में आपको लगता है कि आपको इसमें विकास करना चाहिए, यू हैव टू फर्दर इवॉल्व एज फार एज spoken or written part of English is concerned, kindly take it seriously
इम्प्रूव योर सेल्फ, अपने आप में आप, हाँ, अपना विकास करें। भाषा के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो तो अच्छा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि भाषा एक एप्टीट्यूड की बात होती है। कितने लोग हैं बहुभाषी हैं। अपने 33-34 साल के करियर में मैंने देखा है, बहुत से बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो जिनको कई भाषाएं आती हैं, वो कई भाषाओं में पारंगत हैं। कहा जाता है हमारे अपने प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी, वो 17-18 भाषाएं जानते थे, और इसीलिए वो करीब करीब हर क्षेत्र से जुड़ सकते थे। इसी तरीके से एक बहुत पहले की बात है, जब हमारी पीढ़ी यूनिवर्सिटी में थी, तो एक श्री सुब्बा राव जी थे, बहुत बड़े गांधीवादी थे। आदिवासी क्षेत्रों में, जंगल के क्षेत्रों में उन्होंने बहुत काम किया, और यूथ के लिए, हाँ, मतलब उस समय हम लोगों की पीढ़ी के लिए बहुत कुछ देश की सेवा के लिए ओरिएंट किया। और श्री सुब्बा राव जी के बारे में यह है कि भारत की, मेरे यूनिवर्सिटी में भी आए थे, और उनके परिचय में बोला गया था कि ये भारत की करीब करीब सभी भाषाएं बोल और समझ लेते हैं। तो भाषा के लिए आग्रह जरूर रखिए, अपनी भाषा, मातृभाषा के लिए गर्व कीजिए, आग्रह रखिए, लेकिन अंग्रेजी के प्रति आप बहुत खुला हुआ दिमाग रखिए। मैं खुद हिंदी भाषी हूं, मुझे हिंदी में संप्रेषण करने में बहुत आसानी होती है। बच्चों के साथ मेरी बातचीत या अपने परिवार के साथ और मित्रों के साथ मेरी बातचीत हिंदी में ही होती है। लेकिन वो एक तरफ है औपचारिक भाषा है, औपचारिक रूप से जहां संप्रेषण करना होता है, वेयर आई हैव टू कम्युनिकेट फॉर्मली और ऑन एनी ऑफिशियल मैटर, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। सो भाषा के बारे में अपने विचार खुले रखें, और प्लीज, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट टू डेवलप, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू वीक्स। 3 महीने अगर आप अपने आप को डेडिकेटेड रूप से समर्पित करें, तो आई डोंट थिंक यू विल बी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन अटेनिंग द फ्लुएंसी। तो इस पर कि आप अंग्रेजी समझ लेते हैं, इससे एक कदम आगे बढ़िए, और अंग्रेजी समझ नहीं, अंग्रेजी में समझाने तक की योग्यता अपने आप में हासिल कर लीजिए। चलिए, ये तो भाषा की बात हो गई। बात आती है कुछ मुद्दों की। अक्सर आप ट्रेनिंग एकेडमीज में जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपको एक खास तरीके से बैठना है। यू हैव टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर पोस्चर ड्यूरिंग द इंटरव्यू। और वो पोस्चर कैसा होता है कि आप कुर्सी पर बैठेंगे और हाथ अपने थाइस के ऊपर रख लेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बैठेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बहुत पीछे बैठ जाते हैं, कुर्सी के आगे बैठ जाते हैं, स्वाभाविक रूप से, आई मीन नेचुरली दे वुड लाइक टू समटाइम्स ओवर लीन, पीछे ज्यादा कर लेते हैं, आगे बहुत ज्यादा झुक जाते हैं, हाँ, कंधे उचका लेते हैं। ये चीजें नहीं है, ऐसा नहीं कीजिए। बहुत ज्यादा पीछे मत झुकिए, बहुत आगे मत झुकिए, दाएं मत झुकिए, पैरों को क्रॉस करके मत। बट एट द सेम टाइम डू नॉट अडॉप्ट रोबोटिक पोस्चर। बहुत से लोग होते हैं बिल्कुल एकदम तन जाते हैं, वो सहज पोस्चर नहीं होता है। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि आपके हाथ पैर या किस तरीके से बिल्कुल एकदम वो बांध देते हैं आपको, ऐसे वो बताते हैं कि जैसे बिल्कुल अगर आपने थोड़ा सा हाथ हिलाया तो आपका इंटरव्यू चला गया। फ्रेंड्स, लेट्स बी प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है कि आपको एक रोबोटिक और बिल्कुल एकदम टाइट और स्टिफ होकर के इंटरव्यू देना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज इजी होनी चाहिए, पोस्चर आपका इजी होना चाहिए। अगर आपने थोड़े से अपने हाथ हिला भी लिए, हल्का सा, ऐसा नहीं कि बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाए, आपने बहुत ऊंचा हाथ उठा दिया, बहुत लाउड एंड प्रोमिनेंट, है ना, जेस्चर्स रखे, नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपकी गर्दन थोड़ी सी हिल गई, हाथ आपके थोड़े से हिल गए, है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपने आप को इजी रखो, सहज रखो, रोबोटिक मत बनो। यही है कि जेस्चर्स और बॉडी मूवमेंट बहुत लाउड नहीं होने चाहिए, बहुत प्रोमिनेंट नहीं होने चाहिए। लेकिन एक यह भी बात मैं आपको बता दूं कि ये सब शुरू में ही होता है।
during the initial phases only. After some time, the interviewing officer becomes comfortable with you and you become comfortable to the interviewing officer. At that time, these body movements and gestures, they are pushed. उसके बाद मतलब after some time. मुझे याद है हमारे एक टीचर थे, पहले दिन क्लास में आए तो उन्होंने पैर मोड़ लिए और अपना पैर छोटी सी जो डेस्क होती है टीचर्स के सामने उसके ऊपर टिका लिया. It was very, very funny posture. He came there and he rested his foot after folding it, from the knee. Huh? It was looking so funny and we started, but it all remained in our mind only till about first 5 or 10 minutes. उन्होंने जब अपनी बात शुरू की, हाँ, अपने सब्जेक्ट को डेवलप करना शुरू किया, oh my God, we all had nothing but great appreciation and respect for this teacher, irrespective of his funny posture. तो ओवर कॉन्शियस मत हुई, चाहे पोस्चर के बारे में, चाहे बॉडी लैंग्वेज के बारे में. हाँ, जरूर ऐसा है कि देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेजेस व्हिच रिवील very different personality, but please remember, this does not mean that you become absolutely stiff and you start holding your movements and holding your body language. In fact, मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त आप होल्डिंग शुरू कर देते हैं अपने आप को, उस वक्त आपके दिमाग में एक अनईजीनेस, आप थोड़े से असहज हो जाते हैं. इसलिए पोस्चर, जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज के बारे में आप उतना ही लें कि आपको सहज रहना है और बहुत लाउड नहीं होना है. इनके बीच में आप कहीं रहिए. ठीक. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इशू. That is, many of you, they share their weaknesses. Sir, I don't have any hobby. I couldn't get a time to develop a hobby. आपको याद होगा PIQ का 11th कॉलम, हॉबीज स्ट्रोक इंटरेस्ट्स. दोस्तों, much water has flown since our generation was student. देखो, जब हमने पढ़ाई लिखाई शुरू की, हम लोगों के स्कूल कॉलेज के दिनों में एक तो एकेडमिक जो कैलेंडर होता था, अगर मेरी पीढ़ी के लोगों से आप पूछें तो हमारी छुट्टियां, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, इन बिटवीन जो वेकेशंस होते थे, शेड्यूल वेकेशंस, टोटल 90 डेज के होते थे. 90, 3 महीने. यानी एकेडमिक कैलेंडर केवल 9 महीने का होता था और 3 महीने छुट्टियां होती थी. आज की बात है, छुट्टियां घटती चली जा रही हैं. ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से ऑफिशियली आप देखेंगे कि जो एकेडमिक जो हॉलीडेज है और वेकेशन पीरियड है वो 20 दिन कम कर दिया गया, 70 डेज, इंक्लूडिंग विंटर एंड समर्स. एंड एज इट इज, आप 11th क्लास में गए, आपको मे बी एक हफ्ते के बाद, 11th से 12th क्लास में गए रादर, एक हफ्ते के बाद आपको बुला लेते हैं. दे वांट टू कवर दिस सिलेबस. सच्चाई ये है कि आज का सिलेबस, स्पेशली फ्रॉम क्लास 10th to 11th, इट हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड्स. हमारे वक्त में क्या होता था, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स यूज्ड टू बी देयर राइट फ्रॉम क्लास 9th ऑनवर्ड्स. 9th से ही शुरू हो जाता था कि आप साइंस स्ट्रीम के हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, कॉमर्स के हैं. लेकिन अभी 1977 में CBSE ने इस तरीके की स्कीम लागू की कि आपको सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये इंक्लूड कर दिए गए कंपल्सरीली. ठीक है. और इनके बदले में आपके साइंस के सब्जेक्ट्स जो है वो जनरलाइज कर दिए गए. अब मैं इसके बारे में बात करना उचित नहीं समझता हूं कि ये स्कीम ठीक है या वो स्कीम ठीक है, लेकिन एज ऑफ नाउ CBSE से लेकर के मोस्ट ऑफ द
State boards also they are following this scheme. तो जब इलेक्टिव 11th क्लास से शुरू होते हैं and when you choose a particular stream, and I'm talking mostly about the science stream here because defense aspirants and ND aspirants mostly they're the students of science. There's a quantum jump from class 11 syllabus, sorry, class 10 syllabus and class 11 subject. Suddenly, the scope of the other activities than the academics becomes reduced. Some people, they find it difficult to cope up with this subject. ज्यादा से ज्यादा टाइम वो एकेडमिक्स में ही गुजारते हैं. And this is the time to choose the hobby when our generation, okay, felt it and we were passing through this stage. This is the time when your personality diversifies. Personality में विकास शुरू हो जाता है. तो अलग अलग चीजों को अपने टेस्ट के हिसाब से आप ट्राई करते हैं क्योंकि आपके पास टाइम भी होता था उस समय. आई एम टॉकिंग अबाउट आज के जमाने में, आज के टाइम पर ये सच्चाई है कि एवरी स्टूडेंट इज overburdened with the weight of academics. Not only there has been a quantum jump in syllabus from class 10th to class 11th, but also the weight of the burden of competition. आज आप देखिए 9th क्लास से ही और इवन पहले से भी IIT के लिए लोग शुरू कर देते हैं तैयारी. The dream merchants. तो आप स्कूल में गए, स्कूल के बाद इमीडिएटली फिर आप कोचिंग में गए, कोचिंग के बाद फिर आप इमीडिएटली स्कूल का आप होमवर्क कर रहे हैं. आई मीन यू आर ओवरबर्डन विद एकेडमिक्स. तो कहाँ टाइम मिलेगा? और लेट मी टेल यू, ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, इवन द इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स दे नो दिस फैक्ट. अब क्या है? फिर भी देयर इज अ प्रोवर्ब, ऑल द वर्क एंड नो प्ले मेक what is that? Make Jack a dull boy, something like this. यानी कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज होनी चाहिए बीच में. देखो ये हॉबीज क्या है? हॉबीज आर द एक्टिविटीज, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलता है, जिससे आपको थोड़ा सा उससे मनोरंजन होता है, जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है. अगर आपने ऐसी एक्टिविटी डेवलप की, और आई एम श्योर दैट विद अ लिटिल बिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट इट इज पॉसिबल. लेकिन फिर भी अगर आप एक्टिविटी नहीं कर पाते तो भी आपको कुछ ऐसे इंटरेस्ट होने चाहिए. मैं अपनी बात बताऊं, पर्सनली मुझे टेनिस देखने में इंटरेस्ट था टीवी पे. आई वाज नॉट अ प्लेयर ऑफ टेनिस, आई नेवर ट्राइड माय हैंड इन लॉन टेनिस, बट आई लव्ड, व्हाट इज दैट, watching the players in the tournaments of certain level. तो कुछ हॉबीज ऐसी होती हैं जिनको आप पैसिव हॉबी भी कह सकते हैं, येट दे डेवलप योर पर्सपेक्टिव. दे हैव गॉट सम लर्निंग वैल्यूज. कुछ पढ़ो, कुछ क्रिएटिव काम करो. इन केस यू कैन अडॉप्ट समथिंग क्रिएटिव, and this creative does not mean that you spend a lot of time. Small activities, cooking for that matter, let us say. ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सडनली आप बहुत बड़े शेफ बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप सीख सकते हैं. इसमें बहुत ज्यादा ना टाइम लगता है ना रिसोर्सेज लगते हैं. हाँ, आपका बीच में ब्रेक भी हो जाता है. घर में गमलों में 2-4 गमले, 10 गमले, कुछ रख लीजिए, गार्डनिंग शुरू कीजिए. तो इस तरीके की छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं. These hobbies or interests, they will help you develop. They will relax you. They will add the element of creativity in you. Do that. तो ये क्रिप मारने की बजाय कि हाँ भाई मेरे हॉबीज नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ माई ओवर burden of I'm overburdened with the academics, and that's why थोड़ा सा टाइम, कुछ there are certain activities which you can do it on weekly basis.
monthly basis, weekly basis, let us say cycling. 2 घंटे का टाइम निकालिए with your friends, you can go for a long cycling. हाँ, ओके. कुछ ग्रुप एक्टिविटीज करें. हॉबीज में मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि ग्रुप एक्टिविटीज करें. राइट. चलते हैं अगले इशू के ऊपर. डाउनफॉल इन एकेडमिक्स. याद कीजिए वो कॉलम्स जिसमें आप अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स के बारे में लिखते हैं. सो जनरली ट्रेंड क्या होता है कि जो बच्चे दे डू वेरी वेल इन क्लास 10th पब्लिक एग्जामिनेशन. बहुत सारे रीजंस हैं उसके. बट whatever percentage you have secured in class 11th, generally for most of the people it shows some downfall in class 12th. ठीक है. किसी के 90% है तो 75-80% पे आ जाते हैं. किसी के 95 है तो 80% पे आ जाता है. And then let me tell you, you will be asked certainly, not because that the interviewing officer doesn't understand. They are very, very senior people. Let me tell you, they have got a lot of exposure for the life. ये ट्रेंड नॉर्मल है. नॉर्मल क्यों है? तो मैंने बताया कि एक तरफ तो क्वांटम जंप सिलेबस में. मेनी अ टाइम you have selected the stream under the pressure of parents or sometimes under the pressure of your own peer group. Your friend has opted for commerce. Example के लिए, most of you must be the student of science history. So if your friend has offered science stream, you don't want to lose his company rather in the classroom. So you have also opted the same subject as your friend has offered. Many a times, especially I have seen in KVs, there is no teacher for a subject for for a lot of span of time. एक टीचर चले गए ट्रांसफर पे and his replacement is not available. So अब क्या करेंगे? फिर आप प्राइवेट ट्यूशंस में जाते हैं. It is just not, let me tell you, possible to have, you cannot ensure that your teacher will be a quality teacher with whom and he understands you. Many a time it happens that there is some or the other kind of issue between the students and the teachers. Since you don't like the teacher, you don't like the subject as well. होता है, it's very natural. So quantum jump in the syllabus, non-availability of the teacher, the subject chosen not because of aptitude but because of the peer pressure or parents pressure. लेकिन फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि दिस इज द टाइम, ये आप लाइफ में स्पेशली क्लास 12 में उस स्टेज में होते हैं जब आप का जो डेवलपमेंट ग्राफ है ना, वो उस समय बहुत ही ज्यादा मतलब वॉलेटाइल होता है, उथल पुथल भरा होता है. योर इंटरेस्ट्स डाइवर्सिफाई. यू विल ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद एक्स थिंग और वाई थिंग. बहुत सारी चीजों को आउट ऑफ सेंस ऑफ थ्रिल, इट्स अ क्यूरियोसिटी. मेरा मतलब है कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच डिस्ट्रैक्ट योर अटेंशन. दिस इज द टाइम टू फील attracted towards the opposite sex. This is the time to feel more attached with the the virtual world, internet. There are many social sites. So distractive factors हैं, that's again a fact, and the interviewing officer knows it, and they do affect your performance in academics. हालांकि every students would like to post the best of the results according to his capacity, but there are distractions as well. Now the question is, when you are appearing
Okay. For the interview, now the question is, did you draw a lesson? अगर मान लीजिए कि आप एकेडमिक्स में ध्यान नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस और व्हाटएवर इज दैट, have you taken a lesson for the future, or you are trying to justify it, you are trying to rationalize it, you are trying to intellectualize it? जिसे हम लोग साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, are you resorting to some defense mechanism? आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो और इसके लिए ब्लेम दूसरे को दे रहे हो। यहीं पे आपकी मैच्योरिटी या इमेच्योरिटी का टेस्ट होता है कि आप अपने आप को देखिए, one should not be having too much of accepting the blame beyond a certain point, but at the same time you must take the fair share of what can be ascribed to you. आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, उसको स्वीकार करने, देखिए जो हो गया सो हो गया। आपका क्लास 10th में लेट्स से 95% थे and now you have dropped to let us say 80%. Now you cannot do anything but to accept this result. लेकिन by acceptance you have to take a lesson for future as well, and let me tell you your answer, किस तरीके से आप इसको आंसर दे रहे हैं ये बताएगा. This will give enough of hint or clue to the interviewing officer whether you are rationalizing your failure or rationalizing your downfall or protecting your, or you don't want your these activities be understood by him as the cause of your downfall, जो भी है. लेकिन only a fair acceptance and taking a lesson and looking forward, that will help you. Okay. मेरा ख्याल आज हम इसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत कर लें. दैट इज रैपिड फायर फ्रेंड्स. रैपिड फायर, it is not first of all compulsory. It has been recently initiated, I mean for the last about 5-6 years, and some people they have experimented with the technique, and especially जो मेरा experience कहता है कि it started more and more in the the army boards. The interviewing officer has got one justification. रैपिड फायर मीन्स आप कंफर्टेबल हुए नहीं कि आपसे 10 सवाल एक के बाद एक पूछ लिया जाता है. आइडियली इंटरव्यू मस्ट स्टार्ट विद सॉफ्ट नोट, रैपो बिल्डिंग, थोड़ी सी सॉफ्ट बातें, मेक यू कंफर्टेबल. बट लेट मी टेल यू, आर्म्ड फोर्सेस आर द ऑर्गेनाइजेशंस इन विच you cannot expect ease every time. The stress is the essential part of the job contents, and handling the stress is a skill, a sign of maturity. तो अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर रैपिड फायर क्वेश्चन देते हैं आपको, रैपिड फायर राउंड देते हैं आपको, तो वेल द आइडिया इज ओनली टू टेस्ट how much composed you are. Answers are not important. How you handle your own stress, this is important. Now the question is, if he has asked you 7-8 questions, generally people come with a sense of guilt. Sir, I could answer only 4 of them. I didn't remember. So I, as a psychologist, would like to assure you that it is not expected that you will remember all the 10 questions, 7 questions, 9 questions, which is presented to you as rapid fire. Impossible है, let me tell you. आप उनसे पूछिए जिन्होंने साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है. लर्निंग एंड मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ, एसेंशियल पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टेक्स्ट. When something is presented to you in a series, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक सीरीज में एक के बाद एक अगर आपके सामने प्रेजेंट की जाती है, तो you know what is the natural process in memory.
Either we remember the initial part, we call it the primacy effect, or we remember something. Clearly, I'm saying, in case you're a person with a gifted memory and capacity, fine, you may remember everything. But for the normal people, primacy effect, that is remembering the questions in the initial presentation, initial part of the presentation, and the later part of the presentation. Recency effect, that is remembered with better clarity in comparison to the questions put in the middle or the things presented in the middle. Here, the phenomenon of inhibition and interference, proactive and retroactive, यानी कभी जो पहले की जो चीज है वो बाद की चीज को रजिस्टर करने में, और कभी बाद की चीज पहले की चीज को रजिस्टर करने में इंटरफेयर करती है. Inhibition and interference for the items presented in between. So अगर उन्होंने 10 सवाल आपसे पूछे और अगर आपने इनिशियली शुरू के 2-3 के जवाब दिए, बाद के 3-4 के जवाब दिए, टेक योर मेमोरी एज परफेक्टली नॉर्मल. देयर इज नथिंग टू फील परप्लेक्स, देयर इज नथिंग टू फील एनी फियर. यू आर परफेक्टली नॉर्मल. इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने सवालों का जवाब कैसे दिए. डू यू अपीयर विजिबली शेकन अप, or you still maintain your calm composure? So friends, ये सब 2-4 बातें हैं जो कि इंटरव्यू के टाइम पे लोग फेस करते हैं. Another thing is, जो perhaps it is not mentioned here, I would like to share with you कि एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है. For the last many decades, one question is common. Why do you want to join the armed forces? इसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा, लेकिन I would like to end the topic on this note that there's nothing like a standard answer. Why do you want to join the armed forces is very much subjective. ये आपका personal है. There is nothing like a templated answer. There is nothing like a fixed answer, and there's nothing like a standard answer. What has stimulated you or motivated you to join the armed forces? Well, the reason may be well yours and very personal. Right? So please do not try to get an answer from an expert. Do a little bit of soul searching. You will find the answer yourself. Okay. कभी फिर इंटरव्यू या ग्रुप टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में I'll publish other videos. My personal guidance program is ready. Please contact me in case you would like to be guided personally or you'd like to have the dossier evaluation. The numbers are mentioned here. Kindly note down these numbers and contact me. Thank you very much. Once again, my best wishes. Godspeed. Good day.